every content piece, whether written or video, based on writing. Your offer, your story, your emails, your courses, your carousels, your newsletters, your reels and short scripts, your X and LinkedIn posts, and your YouTube video script. But you never learn to write. You try different things, but never sit and think and write. So let's understand what I just told you. कि जितना भी ये कंटेंट क्रिएशन का स्पेस है, वेदर इट्स पॉडकास्टिंग, ईमेल्स, जो आप ईमेल्स भेजते हैं, जब आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसमें आप जो ऑफर कर रहे होते हैं, वहाँ पर भी एनीथिंग, वट एवर यू थिंक अबाउट कंटेंट क्रिएशन इज ultimately based on the writing. But why? And no one talks about the importance of writing. Everyone talks about the video creation, but they forget the principle is the writing. If you can write better, it means you can think better. And as I said, that you never sit and try to think that what can I create? Now understand what writing is. Writing is thinking in a structured form. So for example, when I say that you have to learn how to write, many people, आई डोंट नो कि राइटिंग की जो जॉब है, जो पूरा प्रोफेशन है, इसको इतनी हेट क्यों मिलती है. द नंबर वन रीजन इज कि देर इज नो मनी इन इट. बट ऐसा हुआ करता था एक टाइम पर. जो राइटर्स होते थे बहुत स्ट्रगल करते थे, इवन तो दे आर ग्रेट राइटर्स. लेकिन टुडे इन द डिजिटल इकोनॉमिक स्पेस, इन द डिजिटल कंटेंट क्रिएशन स्पेस, writing is something that can make you even millions. It means it can make you money. I don't like to talk about money when I talk about skills, because I want you to fall in the process of acquiring the skill, not the outcome, which is actually the money. So the whole point that I am driving right now is that if you want to become part of content creation, creator economy, and when we talk about creator economy and the content creation, it's actually we are talking about marketing. You know, एक सर्वे हुआ था जिसके अंदर ये पूरा डेटा आया था कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं इंडिया में, लेकिन उनमें से कुछ लोग ही कमा पा रहे हैं. नाउ हु इज कॉल्ड अ कंटेंट क्रिएटर? कंटेंट क्रिएटर इज समवन हु इज पोस्टिंग वीडियोस और एनी काइंड ऑफ कंटेंट, एनी पिक वीडियो, चाहे वो किसी कुत्ते की वीडियो हो, चाहे घूमते फिरते कोई मीम मटेरियल चीज हो वो डाल दिया. एनीवन कैन बी कंटेंट क्रिएटर. एनीथिंग ऑन इंटरनेट कैन बी कॉल्ड एज कंटेंट. So if anything you post can be called content, that it means technically you can be called a content creation. For example, you are just dancing, you are just ranting about any topic which you even know, and sometimes you are just trying to become funny. You are called a content creator, yes. But right now we are talking about the content creation. I'm not talking about the content creator. I'm talking about the content creator who are marketers, who are. And now when I say marketers is someone, I hope you understand the word marketer. Marketer is someone who knows the psychology, who knows how to offer their services, who know how to run the business. So if you are a content creator, that means you create content, but you are a great marketer, it means you know marketing and sales, then you can excel. And the whole point is, we talked about three things: marketing, content creation, and sales. Now these all three things is based on the principle of writing. But द थिंग इज कि हम कंटेंट क्रिएशन का नाम सुनते रहते हैं, हम तो मार्केटिंग भी नहीं समझते. दैट इफ आई एम बीइंग अ कंटेंट क्रिएशन, आई हैव टू लर्न अबाउट मार्केटिंग, आई हैव टू लर्न सेल्स सो दैट आई कैन अर्न गुड मनी. हम इसके बारे में सोचते नहीं है. तो शायद फर्स्ट स्टेप ये हो कि तुम सेल्स के बारे में समझो, मार्केटिंग के बारे में समझो. लेकिन द मोर डीपर यू विल गो, you will understand that it is the writing which I need to acquire, because everything as I gave you the list, everything is based on the writing. So it is the right time to learn writing. I know तुमने बहुत सारे कोर्सेज वीडियोस यूट्यूब वीडियो के देखे हैं कि यूट्यूब पे ग्रो कैसे करें, रील्स कैसे बनाएं, ये सब करें. बट कोई ऐसा कोर्स नहीं आता जिसके अंदर ये सिखाया दे हाउ टू राइट, हाउ टू थिंक. सो ये बहुत अलार्मिंग भी है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है दैट यू लर्न राइटिंग. नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शॉर्ट फॉर्म राइटिंग, एंड आई कैन सेंस द फियर दैट देयर इज AI एंड राइटर्स की जॉब चली जाएगी. शायद राइटर्स की जॉब चली जाए. बट इफ यू आर व्हेन आई से राइटिंग, अगेन एम्फसाइजिंग इन दिस पॉइंट कि व्हेन आई से राइटिंग इट मीन्स ग्रेट थिंकिंग. एंड इफ यू आर अ ग्रेट थिंकर, नो वन कैन रिप्लेस यू. सो आई एम टॉकिंग अबाउट राइटिंग which will make you a great thinker. So don't afraid of AI that it will take your job. It will take jobs of writers who just write short form content,
जिनको शॉर्ट फॉर्म लिखने आता है, इतना कुछ पता, राइटिंग के प्रिंसिपल्स नहीं पता, वो इतनी रिलीजियसली भी राइटिंग को फॉलो नहीं करते, बस शायद इसलिए राइटिंग को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि आउटकम थोड़ा पैसा है। देखो, आई लव मनी, आई लव मेकिंग मनी, एंड ये चैनल का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी यही है कि आप ऐसी स्किल सीखे, स्किल ऑफ राइटिंग सीखे जिससे आप पैसा कमा सके, विच इज द कोर फंडामेंटल स्किल। बट आई डोंट want you to learn writing because you will earn money. I want you to learn writing because it will teach you how to think better. Because so that you fall in love with the process of writing. Because when you are into this profession of writing, then for hours and hours you are just writing. Maybe you are writing poetry, maybe you are writing your own story, maybe you are writing your client's work, maybe you are just writing anything random, but you are writing. Even if it's weird, even if it's stupid, you are writing because you are in love with that process. So right now I'm talking to those people who want to fall in love with this process. And if you fall in this, or if you fall in love with the process of writing, of course you will make a lot of money. But I don't like to talk about the कि एक महीने में 1 लाख कमा लो कॉपी राइटिंग से, ये कर लो वो कर लो. Even though you can, but I have a big vision to teach you writing, so that you can keep doing it for the rest of your life, not just for 1 lakh per month. इसके बारे में और बात करेंगे कि राइटिंग में और क्या क्या चीज़ें आपको अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से किस तरीके की राइटिंग को फॉलो करना चाहिए, यानी कि किस तरीके की राइटिंग सीखनी चाहिए. बट फॉर दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट राइटिंग एंड द नीड टू लर्न राइटिंग एंड हाउ इट विल हेल्प यू. People have stopped thinking. They don't think, they just accept the things according to their bias and interest. Now, this is really interesting. Many people, most of the people I meet on Twitter, LinkedIn, they have stopped thinking. They just accept the things according to their bias and interest. And that's why, and this is the reasons I have written, this is the reason many creators create content that requires no thinking. Now let's understand this again. First sentence, that people have stopped thinking. What does it mean? कि जब भी कोई चीज हमारे सामने रखी जाती है, चाहे वो मीडिया ही रखती है, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स हो गए, इंस्टाग्राम हो गए, यूट्यूब हो गई, या हमारी पर्सनल लाइफ में कोई सिनेरियो सिचुएशन हमारे सामने आ गई, कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई, वी डोंट थिंक अबाउट इट. व्हाट वी डिड, वी एक्सेप्ट द सिचुएशन, और वी नो, और जो भी हम करते हैं वो किसके बेसिस पे करते हैं, जो हमारे पहले से बायस बने हुए हैं, जो हमारे पहले से इंटरेस्ट है, उसी के बेस on the basis of that interest and bias, we take our decision, we don't think. तो क्वेश्चन यहाँ राइज होता है कि सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि व्हाट डज, अगर हम कोई बंदा सोचे तो वो किस तरीके के डिसीजन लेगा. फॉर एग्जाम्पल, कि अगर कोई सिचुएशन तुम्हारे सामने आई तो तुम अपने इंटरेस्ट और बायस को थोड़ी देर साइड रख करके सोचोगे कि इसकी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज क्या है. जो मेरे सामने ये परिस्थिति आ गई है, या ये सिचुएशन आ गई है, या ये वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मैं इसको एक्सेप्ट करूं. लोग कर लेते एक्सेप्ट क्योंकि उनके इंटरेस्ट में है. मैंने यहाँ पे बोला कि दिस इज द रीजन मेनी क्रिएटर्स क्रिएट कंटेंट दैट रिक्वायर्स नो थिंकिंग. व्हाट इट मींस, इसका मतलब कि ऐसा कंटेंट, ऐसी वीडियो या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके सामने रखूं और आप बिना सोचे समझे उसको एक्सेप्ट कर ले कि दिस इज द अल्टीमेट ट्रुथ. इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस. अब ये तो बहुत बेसिक बात है, बट इसमें सोचने की क्या चीज है, ये तो आपको पता है, ये तो हमारे बायस है, बायस भी कह सकते हैं, ये तो है, ये तो सच ही. तो मैनी क्रिएटर्स कीप ऑन रिपीटिंग दिस थिंग, हार्ड वर्क नीड्स सक्सेस, कर लो वो कर लो, 21 ways to earn money. I have no problem with them. I have written ahead, I am reading from my newsletter. These creators don't make people, now let's understand about these creators also. These creators don't make people question or infuse a dose of curiosity into their minds. What does it mean? It means कि first of all यहाँ से इसी लाइन से हम समझते हैं कि आखिर thinking मतलब क्या है. Thinking basically when you question the problem, you question the information, you question the conventional wisdom. You don't question to become controversial. इसको भी बहुत ध्यान से समझ लेना. काफी लोग क्वेश्चन कर देते हैं, भाई ये तो बेकार चीज है, वीडियो बना रहे हैं अगले क्रिएटर को या इस बंदे को, फलाने बंदे को रोस्ट कर रहे हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट एटीट्यूड. मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप क्वेश्चन करते हैं, इसका मतलब कि आप ये पूछते हैं कि, अभी आगे मैं बताऊंगा भी किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन पूछते हैं जैसे कि ये चीज क्यों सही है, या इसमें क्या चीज गलत बोली जा रही है. और अगर वो कंटेंट बहुत वेग है, यानी बहुत ऑब्वियस है, इसमें कोई थिंकिंग की जरूरत नहीं. सो आई डोंट थिंक दैट क्रिएटर, यू शुड फॉलो दैट क्रिएटर. ओके, यू शुड फॉलो
it's on you, it's your decision. But let's read ahead. ये जो creators होते हैं, लोगों को question नहीं करवाते. So your content, for example, right now I'm speaking about different things. तो मेरा content ऐसा हो, या आप जिस भी फील्ड में हैं, किसी भी फील्ड में लिख रहे हैं, तो आप ऐसा लिखिए कि लोग क्वेश्चन करने लग जाए कि बात तो सही है, मुझे इसको दोबारा सोचना चाहिए, क्या मैं सही रास्ते पे चल भी रहा हूँ, क्या ये चीज सच में ठीक, मतलब कि एक उनको वो एकदम हो रही कि ये क्या चीज है. एंड लोग ये नहीं करते. क्यों नहीं करते? इसका एक बड़ा अच्छा रीजन है, क्योंकि इट मे क्रिएट अ कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी. लोग आपको हेट दे सकते हैं कि भाई तूने ऐसे कहते क्या दिए, गालियां लिख सकते हैं. तो इतना करेज किसी में नहीं होता कि वो ऐसे कुछ चीजें लाए अपनी ही रिस्पेक्टिव फील्ड्स में, किसी भी फील्ड में हो आप, कि इतना करेज लाए और एक वो बात कह सके जो जरूरी, जो सही है. क्योंकि उसमें हेट मिलती है. जो भी हम अगर सत्य सच बोलते हैं तो उसमें हमको बहुत हेट मिलती है. सो that's why they don't have courage. But let's face it, you don't need to be scared. Don't care. Have the courage to say the truth. And before having the courage to say the truth, you will need the right skills to find the truth, then the courage to ask the right question. And when you find the truth, you can present it without being scared. And when you have this ability, you won't be scared. And I don't even call them creators. Okay, now I'm calling out those creators who create content which requires no thinking. But as I have written here that I don't even like to call them creators. They are good consumers. Now listen it very carefully. They are good consumer of the basic information available on the internet and curate it as if they have ideated it. अब इसका क्या मतलब है कि मैं उन्हें क्रिएटर बोलना भी नहीं चाहता, because creator is someone who creates. What they do कि जो बेसिक इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है वो उसी को क्यूरेट करते हैं. क्यूरेट मतलब कि मैंने कहीं पे कोई इन्फॉर्मेशन देखी, अब मैं उसी को बताऊंगा अलग ढंग से, ठीक है, और ऐसे एक्ट करूंगा जैसे मैंने आइडिएट करा. इवन द जो अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं वो किसी और का कंटेंट कॉपी कर करके दिखा रहे होते हैं, इंटरनेशनल यूट्यूबर्स का या यहाँ का वहाँ के, एक दूसरे कॉपी करके. नाउ आई नो द सिनेरियो, द स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, कुछ अच्छा कुछ ओरिजिनल नहीं है, ये नहीं है, लेकिन इसके नाम पे यू जस्ट टेक द कंटेंट, तुम उसमें मेहनत तो करो. व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनल ब्रांड? पर्सनल ब्रांड मतलब शिशिर बादल जब जाके आगे जाकर के जो मेरी पर्सनल ब्रांड बनेगी, इट मीन्स आई वो, अगर कोई मुझे सब्सक्राइब करता है, फॉलो करता है, तो ही विल बी थिंकिंग दैट आई वांट टू नो व्हाट शिशिर थिंक्स. नाउ थिंक्स what has Shishir to say, because there is a personal connection between it, because I have a personal brand, and this personal connection may you don't even have something to say by yourself. So what's the point of creating personal brand? Personal brand, your personal opinions on the things. I'm not saying talk about the politics and democracy and war, religion, everything. No, I'm not saying that. In your field, if you are in health, talk about what's yours with the confidence, with the right fact, with the right knowledge. That's what I'm talking about. Don't become curator. You can curate. Even I have written ahead. No, I don't have any problem with these people. Even their content can be very helpful for some people. I ऐसा नहीं कि मेरे को नफरत है क्रिएटर से. अब जो नए बिगनर्स होते हैं, they like their content. They love their content. And there's nothing wrong in that. But as you grow, you have to take care कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं, किसका कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, बिकॉज यू बिकम व्हाट यू कंज्यूम. और शुरुआती टाइम पे चलो आपने ऐसे बेसिक इंफॉर्मेशन लिमिटेड, तो वो बेसिक इंफॉर्मेशन जब आप अचीव कर लेंगे, then you need something greater. You need something so that you can create your own ideologies, your own philosophy, your own ideas, your own ways of doing the things, your own innovations. These all things come from critical thinking. And the writing is the best way to practice thinking. And that's what I teach on this channel. The whole point I want to convey is that everything is based on writing, and writing is thinking. You need to learn to think if you want to thrive in a creator economy. So, एक वर्ड जो हम बहुत सुनते हैं क्रिएटिव इकोनॉमी में कि सैचुरेटेड है यूट्यूब पे, रील्स पर, इतना आसान नहीं है ग्रो करना, पैसा कमाना. सो पैसे कमाने की जो भी हमने बात करी कि पैसा कमाना है तो सिर्फ कंटेंट क्रिएशन पे नहीं, मार्केटिंग, सेल्स एंड राइटिंग पे भी ध्यान दें. राइटिंग इज समथिंग आई एम टीचिंग यू,
बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि सेल्स एंड मार्केटिंग एंड डिफरेंट वेज सो दैट यू कैन प्रोडक्टाइज योर सेल्फ, उस पर भी वीडियोज आ रही, बट फॉर दिस वीडियो वी आर फोकसिंग ऑन राइटिंग एंड यू हैव टू लर्न राइटिंग टू थ्राइव इन क्रिएटर इकोनॉमी एंड जो सैचुरेशन की बात करी, बिकॉज व्हेन यू लर्न राइटिंग यू लर्न थिंकिंग, सो यू हैव योर ओन पॉइंट ऑफ व्यूज, यू हैव योर ओन ओरिजिनल कंटेंट व्हिच पीपल वुड लव टू सी। यही तो सारा गेम है कि कुछ अगर ऐसा लेकर के तुम आ जाओ जो लोगों को लगे कि दिस इज समथिंग आई हैव नॉट हर्ड बिफोर, या ये जो इस पर्टिकुलर चीज पे जो इस बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू है, जिस तरीके से ये सोचता है, जिस तरीके से ये बात कहता है, दिस इज समथिंग डिफरेंट। आई एम नॉट सेइंग कि मैंने अचीव कर लिया, बट एटलीस्ट आई एम अवेयर ऑफ दिस फैक्ट एंड आई एम वर्किंग ऑन इट, एंड दैट्स व्हाट आई वांट फॉर यू गाइस टू, इफ यू आर वाचिंग मी, इवन इफ यू आर बिगिनर, because if you are a beginner, you have lots of hopes, lots of courage, lots of ability, you have a great ability to thinking freshly. There are various ways which can make you a better thinker, but I am going to tell you the one way which I believe that I have been doing it since childhood, but I didn't do it to become a great thinker or writer. It was in my nature that I used to do this, and listen me very, very carefully. This will help you to become a better thinker, because I believe, and the thing is, asking the right question would lead you to think better. Let's say it again. Asking the right question would lead you to think better. Whenever you consume any kind of content, start with asking questions like, why should I believe? Now, इसको बहुत ध्यान से सुनना कि किसी भी कंटेंट को आप देखते हो तो क्वेश्चन पूछना जब भी आप उसको सोच पाओगे। ग्रेट गुड क्वेश्चन will force you, persuade you to think better. So first question, whenever you consume any kind of content, why should I believe in this piece of information? कि जो भी मेरे सामने प्रदर्शित हो रहा है ये इंस्टाग्राम के माध्यम से, बड़ी हिंदी थोड़ी शुद्ध होगी, जो भी आपके सामने दिखाया जा रहा है उसको मैं क्यों बिलीव करूँ इस पर्टिकुलर चीज पे? आस्क दिस थिंग टू योरसेल्फ, हाउ दिस थिंग कैन बी रॉन्ग और राइट। ये जो चीज है ये कैसे सही और गलत हो सकती है। अब कोई चीज जो मैं कह रहा हूँ या कोई भी इंसान कह रहा होता है डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, ये हर चीज के लिए है। न्यूज चैनल्स, जिस भी रिस्पेक्टिव फील्ड में आप, हेल्थ में है, आप ऑटोमोबाइल में है, किसी भी तरीके का कंटेंट बनाते हैं, हाउ दिस थिंग कैन बी रॉन्ग और राइट, कि ये चीज गलत कैसे हो सकती है और सही कैसे हो सकती है। व्हाट मेक्स दिस क्रिएटर से दिस थिंग, जो सामने मेरे को ये चीज बता रहे हैं, वेदर क्रिएटर और अ स्पीकर, जो भी ये चीज मुझे बता रहा है, ये क्यों बता रहा है, व्हाट मेक्स दिस थिंग। तो उसके यहाँ से ये निकल सकते हैं कि इसका तो कुछ है नहीं, तो कहीं से उठा करके मुझे बता रहा है। व्हाट अदर एक्सपर्ट्स आर सेइंग अबाउट दिस थिंग, आप उसी सेम चीज में, जो उसी सेम चीज के बारे में जो फील्ड में और एक्सपर्ट है, वो इसके बारे में क्या कह रही है। हाउ इट इज अफेक्टिंग द ऑडियंस, ये पूरी ऑडियंस को किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, ये भी समझना। कैन दिस, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, कैन दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बी मिस इंटरप्रिटेटेड, एंड इफ यस देन व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस। मिस इंटरप्रिटेशन मतलब कि उस बात को गलत समझ लिया। जैसे कि मैं कोई चीज, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि जो कंटेंट क्रिएटर्स काफी वैसे कंटेंट बना लेते हैं जिनकी दैट रिक्वायर्स नो थिंकिंग, आप उसको मिस इंटरप्रेट कर लेगी, ये इसको तो हेट है, उससे उनको वैसे कंटेंट क्रिएटर्स नहीं पसंद। नहीं, मैंने इसलिए भी लिखा कि नो आई डोंट हेट देम, अच्छा है, किसी किसी के लिए हेल्पफुल होगा, बट द पॉइंट मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो नहीं है, मतलब कि तुमको सोचना पड़ेगा, यू हैव टू बिकम बेटर थिंकर, जो कि वो चीज को वो बता ही नहीं रहे। ये था पूरा पॉइंट। तो अगर मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है किसी कंटेंट का, तो लोग उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अगर वो इन्फॉर्मेशन थी तो सही, लेकिन लोगों ने गलत समझ ली, या गलत थी लोगों ने सही समझ ली। तो ये जब आप क्वेश्चन उससे पूछ रहे होंगे, व्हेन यू ट्राई टू, नाउ लिसन मी, व्हेन यू ट्राई टू थिंक अबाउट द आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस, I don't guarantee you will be able to find the right answer, but the amount of time you will give into thinking about these answers will form the ability in you to think critically and observe and see what other people cannot see easily. Interesting. कि मैं ये गारंटी बिल्कुल नहीं दे रहा कि क्वेश्चन आप पूछने के बाद एक अच्छे बहुत बेटर थिंकर बन जाएंगे। हाँ, इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ कि थोड़ा सा आप बेटर करने लगेंगे, वो मसल्स बिल्डअप होनी शुरू हो जाएगी। बट इस बात की गारंटी है कि आप जब ये करते रहेंगे तो आपके पास एक एबिलिटी फॉर्म हो जाएगी वो चीज देखने की जो और लोग नहीं देख, यानी कि यू विल हैव द एबिलिटी टू थिंक डिफरेंट, यूनिकली, क्रिटिकली। वो 3 वर्ड बोल दिए, तो इन्हीं तीनों का सार यही है
कि आपके पास एक लेंस आ जाएगा समझने का कि दुनिया में क्या क्या चीज़ें गलत हो रही हैं, जिनको सही तरीके से बताया था, क्या क्या चीज़ें लोग स्ट्रगल कर रहे हैं जो सही वो समझ ही नहीं पा रहे कि ये एक स्ट्रगल है, ये एक प्रॉब्लम है। आप प्रॉब्लम समझेंगे, काफ़ी समय ये समझेंगे कि जो सॉल्यूशंस होते हैं असल में वही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही होती हैं। अब ये बड़ा इंट्रीगिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए, इसके बारे में भी हम अगली वीडियोस में बात करेंगे। सो ये जो थिंकिंग है, ये पूरा सिनेरियो जो क्वेश्चंस आप खुद से पूछेंगे, मैं फिर से कह दूँ, यू वॉन्ट बिकम ग्रेट थिंकर इन जस्ट वन डे, बट ये स्टार्टिंग हो जाएगी। और स्टार्टिंग हो जाएगी तो कम से कम आप अवेयर हो जाएंगे। जैसे कि मैंने क्या कहा कि ये जो ओरिजिनल कंटेंट है, ऐसा कंटेंट बनाओ जो लोगों को क्वेश्चन करे, थिंक करे। इसमें मैं भी इतना भी खुद को एक्सपर्ट नहीं मानता, बट आई एम अवेयर। वाई आई एम अवेयर? बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस पूछ पूछ के मैं अवेयर हो गया, तो कम से कम मैं उस अवेयरनेस के साथ सही स्टेप ले पाऊंगा। एंड आई वांट द सेम थिंग फॉर यू गाइस, कि आप शायद इन क्वेश्चन से अवेयर होने लग जाएंगे और सही स्टेप लेंगे। Now, what will happen when you will answer to these questions and think about this for hours and hours and days and write about it? Whenever you're thinking, just write about it, think, socho, pucho, different books paro. Now this is completely like finding the truth. You are just becoming what you should be. Now, what would happen when you will be doing this? You will be able to ideate. You will have the courage to ask the right question. You will be able to write the content that changes the world. Now, when you will change the world, of course, you will earn the money. Content means the words. You will able to write the word that will change the world, that will solve the problems, that will motivate, inspire people, that will be life changing. And you will be seen as innovator, thinker, writer, and thought leader. That's the power of writing. That's the power of thinking. I am on this journey where I am learning these skills. I always quote that thinking, writing, speaking, reading. These 4 skills are interconnected with each other. And I love these skills. I have been practicing it maybe since childhood because I have always loved writing. And I think today I can create this video. I love creating these videos. I love writing. And I want the same for you. And I have seen people, they have stopped thinking, they have stopped writing. There is too much hate for the writers. I don't know why, because they can't earn money. Because मुझे तो लगता है कि सब कुछ ही बेस जब writing में है तो they are earning money because of the writing. So I hope you like this video. I'm on this journey. Why I say that I'm on this journey? Because I don't consider myself expert, guru, or some great guy. Because I'm just like you. We just started. Who have courage to create content. Who have courage to ask the right question, and becoming better. So I want the same for you. And if you like the video, and if you want to know more about thinking, writing, and difference, and of course about sales and marketing, so please subscribe to my channel. And if you have any question, you can always comment. You can always DM me on Instagram, or you can even mail me, which I really like. Thank you so much.